मैंने चुनौती से बढ़कर अवसर को चुना, कमी से बढ़कर हौसले को चुना। मैं वो हूँ जिसने अपने जीवन में हर पल हंसकर जीने को चुना। अरे वाह। सो बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव, बीइंग स्पिरिचुअल इज द मोटिव। तो उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो उसकी बहुत बड़ी गिफ्ट है। एंड अब उसने उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को यूज कर लिया है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी समाज की किसी भी बात से अफेक्ट नहीं होगी। कोई उसको inferior feel करवा भी नहीं सकेगा। Whereas I think differences need to be celebrated, right? Because उसमें we are able to find and discover so much more meaning, not only in that situation, in yourself. Today's Think Right podcast is truly extraordinary because we have with us someone who is extraordinary. And we are taking this to a new level. We are talking to someone who is the future of not only India, but of the world, a generation that we all believe is going to really define what the world becomes over the next few decades. And we have with us here Prathamesh Sinha, who is the recipient of the highest national award that anyone can get, the National Award for Children for Disabilities under the age of 18, the Shresth Divyang Balak Puraskar, which was bestowed upon him by the President of India. He has some wonderful stories to narrate about his interactions with Prime Minister Modi and so many others who he has been able to touch at a very, very young age of 13. So really excited about, actually doing this podcast because I'm sure hum bhi kafi seekhenge Prathamesh ji se. So welcome Prathamesh to this podcast. And of course we have with us, our ever glowing today and ever enlightened, Sister Shivani. Thank you so much for being here with us. Om Shanti. And Prathamesh, आपके बारे में इतना सुना है, इतना देखा है, आप शार्क टैंक पे आए थे, सब जगह आपने आपका क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस और आपकी स्वीटनेस सब जगह छा गई है। तो ये आपको 13 साल की उम्र में ये सब कैसे हो गया? व्हाट इज द सीक्रेट टू व्हाट यू हैव बिकम टुडे? ओम शांति। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो भी मैं 13 साल में कर रहा हूँ वो सब बाबा की कृपा है, मेरे ऊपर शिव बाबा हैं, वो सब मुझसे करवाते हैं, उन्हीं की कृपा है जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज आ रही है और जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो सभी शिव बाबा की कृपा है मेरे पास। आपका यू लॉस्ट योर साइट व्हेन यू वर वेरी यंग एंड ड्यू टू अ ब्रेन ट्यूमर, उसके बाद आपकी सर्जरी हुई और काफ़ी चीज़ों से आप इंटरेक्ट हुए हैं और किए, और आपके सर्जरीज़ को सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे बोलते हैं वो हमको थोड़ा समझाइए। वो आपका माइंडसेट क्या है जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं? मैं जब 14 महीने का था तब मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ जिसकी वजह से मेरा विजन लॉस हो गया। एंड जब ये ब्रेन ट्यूमर जो है रिकर हो जाता है व्हेन आई वाज 8 years old इन 2019, तो सेकंड ऑपरेशन होता है मेरा सेम जगह पे। So I came back home from the hospital and one auntie came to meet me and she was like कि अरे दूसरी जगह पे ऑपरेशन वापस हो गया। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब इनको समझाऊं कैसे, क्योंकि शिवानी दीदी जैसा कहती है ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन अब उनको मैं ये बात कैसे समझाऊं। तो स्पॉन्टेनियस हो गया था थोड़ा माहौल को लाइटन करने के लिए, जो मैं अब अपने भाषण में यूज़ करता हूँ कि आप चिंता मत करिए, पहले बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था और दूसरी बार अपग्रेड के तौर पे दूसरी बार अपग्रेड हुआ है। और ये अपग्रेड होते होते आप खुद अपग्रेड हो गए काफ़ी। हाँ Sister Shivani, we have had so many podcasts and here we are, normally we will talk to somebody who has seen a journey of life and come with change in mindset. Here is a blessed child who's at the age of 13 has faced a lot of challenges and has converted all of those into opportunities, as you can hear. And how does that happen, right? I mean, why is it that such people stand out and this is a very different journey from others. So how do we explain this? See, first and foremost to see कि 13 साल is the age of the body. हाँ जी. Right? So normally when we look at people, we say बच्चा है, बड़ा है, वृद्ध है. We're talking about the age of the body.
या हम कहते हैं मेल है फीमेल है, इट्स ऑल्सो जेंडर ऑफ द बॉडी. बट स्पिरिचुअली इट्स सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि आत्मा है, इट्स अ बीइंग विच इज़ यूजिंग द कॉस्ट्यूम. सो वो आत्मा पहले कुछ संस्कार और कर्म करके आई है, और वो संस्कार और कर्म लेकर वो एक मदर के वूम्ब में एंटर करती है, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है. हम अपनी पहले की जर्नीज़ में, और एक कॉस्ट्यूम नहीं होता, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स की लंबी जर्नी है हमारी. इट्स लाइक अ ड्रेस. हम हर रोज़ एक ड्रेस पहन रहे हैं, उसको अगले दिन उतार रहे हैं, बट हम तो सेम ही है ना. हम ड्रेस के साथ चेंज तो नहीं हो जाएंगे. टुमारो व्हेन वी चेंज आवर ड्रेस, द पर्सन रिमेन्स द सेम. इसी तरह बॉडी को हम चेंज कर रहे हैं. लेट्स से एवरी 100 years हम एक बॉडी चेंज करते हैं. द सोल इज द पर्सन एंड द बॉडी इज द ड्रेस. तो आत्मा सिर्फ एक शरीर छोड़ेगी, दूसरे में एंटर कर जाएगी. वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने संस्कार, अपने कर्म अपने साथ लेकर जाएगी. हम सब अपने पूर्व कॉस्ट्यूम्स में कुछ बहुत अच्छे कर्म करके आते हैं. कभी कभी जाने अनजाने हमसे कुछ अलग अलग कर्म भी हो जाते हैं. और जब हम नए कॉस्ट्यूम में अब आते हैं, जो हमारे से कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो हमारी लाइफ में चैलेंजेस की तरह आ जाते हैं, और जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की तरह आ जाते हैं. लेकिन ज़्यादा पावर उस पर होती है कि हम हमारा अब का कर्म कैसे कर रहे हैं. सो प्रथमेश के लिए हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर एट द एज ऑफ 14 months इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो ही अंडरस्टैंड्स इट नाउ. कार्मिक प्रथमेश समझ में आता ना, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो हम लेकर आए. ही अंडरस्टैंड्स इट ब्यूटिफुली कि हाँ ठीक है, आया ये चैलेंज, लेकिन उसका प्रेजेंट कर्म इतना पावरफुल है, इतना प्योर है, इतना डिवाइन है, इतनी विजडम है कि उसके लिए वो चैलेंज नहीं है. उसने उस चैलेंज को भी उससे ऊपर उठकर, सिचुएशन से ऊपर उठकर उसने उस चैलेंज के ऊपर भी जीत पाई है. सो ही इज एक्सट्रीमली वाइज, एंड वो विजडम, उसके लिए वो चैलेंज सिर्फ एक छोटा सा यूनिट टेस्ट है, नॉट इवन लाइक एन एग्जाम. मतलब उसने उसको उतने हल्के रीति से उसको क्रॉस करके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमेशा हैप्पी रहता है. कोई विक्टिम फीलिंग नहीं है, कोई बेचारा फीलिंग नहीं है. उतना सेल्फ रिस्पेक्ट, उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उतना तो हम कहेंगे जिनकी बॉडी परफेक्ट है उनमें भी कई बार उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. बिना किसी कारण के हीन भावना, इंफीरियर फीलिंग, इवन इन समवन हु हैज़ एवरीथिंग परफेक्ट फॉर देम इज देयर. तो इट्स वेरी इजी टू सी कि वो जो कार्मिक अकाउंट आया वो बॉडी का कार्मिक अकाउंट है सिर्फ, बट द सोल हैज़ कम विद दोज ब्यूटिफुल संस्कार्स जिसने उस कार्मिक अकाउंट को अपनी डेस्टिनी पर हावी होने नहीं देना है. पर ये तो सब बच्चों में हो सकता है टेक्निकली. तो बच्चा नहीं है ना, आत्मा है. सो अभी ये 12-13 years का है, 7, 8, 9 months इन द वूम. सो लेट्स से 13 years पहले ये किसी और शरीर में था. सब बच्चों में नहीं हो सकता है, क्योंकि सब बच्चों की प्रीवियस जर्नी में उन्होंने कौन से कर्म और संस्कार किए. सो टुडे इफ आई एम इन दिस कॉस्ट्यूम एंड मेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील होता है, या मुझे फील होता है आई एम अ विक्टिम इन लाइफ, एंड फिर मैं ये कॉस्ट्यूम छोड़ती हूँ, तो मैं आत्मा जाके एक बच्चा ही बनूंगी. कुछ साल के बाद मैं 4 साल, 5 साल, 6 साल की हूँ. मेरा वो संस्कार ऑफ रिजेक्शन, वो संस्कार ऑफ फीलिंग इंफीरियर, वो मेरे साथ होगा. मैं हूँ बच्चा, लेकिन वो आत्मा का संस्कार है. तो ये आत्मा विजडम का संस्कार लेकर आई है. ये आत्मा स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट का संस्कार लेकर आई है, एंड वो संस्कार ने उसको इस कार्मिक अकाउंट को फेस करने में बहुत बड़ी पावर दी है. तो इसलिए वो कार्मिक अकाउंट उसको तंग नहीं करता. ही इज नेवर ट्रबल्ड बाय इट एट ऑल. लाइक इवन येस्टरडे वी वर डूइंग अ प्रोग्राम, 3000 लोग थे उसमें, एंड ही वाज देयर इन द प्रोग्राम. it's beautiful to see with what dignity he sits with everybody, and जब भी जैसे ऑडियंस से कुछ पूछो, he is the first one to answer. मतलब 3000 तो सो कॉल्ड बड़े बैठे हैं ना, मतलब बड़े इन द बॉडी, लेकिन ये सबसे पहले हर आंसर दे सकता है. तो उसकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो उसकी बहुत बड़ी गिफ्ट है. एंड अब उसने उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को यूज कर लिया है. तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी समाज की किसी भी बात से अफेक्ट नहीं होगी. कोई उसको इंफीरियर फील करवा भी नहीं सकेगा. जैसे उसने कहा ना, आंटी ने आकर कहा ओहो, यू नो दैट्स हाउ वी टॉक लाइक नॉर्मल, ओहो बेचारा फिर से एक और सर्जरी हो गई. अब हम हमारे व्यू से बात करते हैं ना. तो
और वो नॉर्मल है, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं किया उन्होंने। हम भी कहेंगे ना, इतना सा बच्चा अभी सेकेंड टाइम सर्जरी हो गई, लेकिन सी द विजडम ऑफ द चाइल्ड कि उसी समय उसने बहुत रिस्पेक्ट से, डिग्निफाइड तरीके से एक ब्रिलियंट आंसर वहां क्रिएट कर लिया, जिससे उनकी वाइब्रेशन उस पर नहीं इन्फ्लुएंस हुई, इसके वाइब्रेशन ने उनको भी एक अलग तरह से नजरिए को देखना। सो दिस इज द पावर ऑफ द सोल इज एक्सट्रीमली पावरफुल। So we have an inspiring person here today, huh, Prathamesh? You know, you often talk that vision of your life is more important than vision of your eyes. बोलते हैं ना आप? Yes. तो उसका वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? So what I think is जैसे हमारे आइज का जो विजन है वो एक पल को चला जाता है। वी कैन सर्वाइव आफ्टर लूजिंग आवर साइट बट हार्ड टू सर्वाइव आफ्टर लूजिंग योर फोरसाइट। हमारे आइज का विजन एक बार चला गया, लेकिन हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आप खुद अभी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, आपको पता है कि विजन कितना इम्पोर्टेंट है। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो विजन कितना इम्पोर्टेंट है। 10 years डाउन द लाइन आप कहाँ देखते हैं खुद को, या फिर आप अपने विजन, आपका विजन क्या है, हमेशा हर जगह लिखना पड़ता है, हर जगह मेंशन करना पड़ता है। सो जिस प्रकार विजन आइज का ना होने से रोड जगहों पर टकराने की संभावना होती है, लाइफ का विजन ना होने से लाइफ में ठोकरें खाने की संभावना होती है। और ये आपने काफ़ी स्वामी विवेकानंद, हेलेन केलर के बारे में पढ़ के काफ़ी सीखा भी है ना? यस। हाउ डिड दैट स्टार्ट? सो मैं छोटा था तो इतने फ्रेंड्स नहीं है मेरे, सो मैं अपनी फैमिली के साथ ही इंगेज रहता हूँ, और मेरी मम्मा जो है डिफरेंट चीज़ें बताती रहती हैं मुझे। सो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की स्टोरी मुझे बताना शुरू की कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया स्पिरिचुअली, हमारे देश का नाम रोशन किया, कैसे इंटरनेशनली उन्होंने इतना हमारे धर्म को, इतना हमारे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में मदद की। और मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ में आपको, हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों का जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ है। अरे वाह! यस, बोथ ऑफ अस आर बोर्न ऑन मकर संक्रांति, तो ये चीज़ हम दोनों में कॉमन है। और उनकी लर्निंग्स काफ़ी ईजी टू इम्प्लाई होते हैं, काफ़ी ईजी टू हियर होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। और हेलेन केलर, उन्होंने जो योगदान दिए हैं स्पेशली एबल लोगों के क्षेत्र में, सो वो योगदान जो उन्होंने इस प्रकार दिए इतने चैलेंजेस के बाद, उनका जैसा इन्होंने कहा कि उनकी सोल जो इतने संस्कार लेकर आई थी, सो मुझे लगता है कि उनके योगदानों की वजह से वो मेरी रोल मॉडल है। Very good. The role of parents. Yes. Right? I think we often discuss this, that, for the child, the role of parents is so important, right? Do we underestimate that role? No, again, as a society, the parent can also become a victim. Mm-hmm. The parent can also feel life is not being fair to them. Easy तो नहीं रहा होगा बच्चे की पहले एक ब्रेन सर्जरी कराना, काफ़ी स्ट्रेस्ड रहा होगा उस समय भी, और फिर थोड़े साल बाद वो फिर से एक ब्रेन ट्यूमर हो जाए। सो चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग, बट द पेरेंट गोज थ्रू इट with the child obviously, and sometimes even more, because शायद the parent understands it even more than what the child is. लेकिन then again this also reflects the power and the positivity of the parent, कि उन्होंने उसको powerfully emotionally बनाने के लिए उसको शुरू से spiritual शिक्षाएं दी है, ताकि बॉडी का इम्पैक्ट सोल पर नहीं, सोल का इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ेगा। एनीवेज ऑल्सो आत्मा का ही इम्पैक्ट शरीर पर पड़ता है, लेकिन आजकल हम एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। वी गो दी अदर वे अराउंड कि बॉडी ठीक नहीं है, हाउ कैन आई बी हैप्पी। इवन किसी को 100 बुखार हो जाएगा, कहेगा मैं बीमार हूँ, हाउ कैन आई बी हैप्पी। तो हम एक डिपेंडेंसी की दुनिया में रह रहे हैं, द माइंड इज डिपेंडेंट, सिचुएशंस पर डिपेंडेंट, लोगों पर डिपेंडेंट, बॉडी पर डिपेंडेंट। तो इसीलिए वी फील कि बॉडी परफेक्ट नहीं है, हाउ कैन आई बी हैप्पी। लेकिन क्योंकि पेरेंट भी स्पिरिचुअली अपने आप को एम्पावर कर रहा है, तो पेरेंट अंडरस्टैंड्स it is not body influencing the soul, it is the soul influencing the body. तो ये this is something for us all to learn कि body में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, not necessarily this, but it could be just an illness. आज एक illness को लेके भी लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बट अगर आत्मा स्ट्रांग रहेगी, स्टेबल रहेगी, पावरफुल रहेगी, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है।
So it's mind over matter. It's not matter over mind. It's something that we always have to remember. So the parental sanskar. So he's a very blessed soul in a way. Past sanskar भी वैसे आए, parental influence भी वैसा हुआ, और फिर वो दोनों चीज़ें करके जो उसने प्रेजेंट में कर्म किए हैं, अब उसको दुनिया से भी वही रिस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है. सो यू सी, मतलब इसका ये कार्मिक अकाउंट तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, बिकॉज जितनी दुआएं इसको मिल रही है, ही इज़ नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ही इज़ इंस्पायरिंग पीपल टू क्रिएट अ चेंज. एंड उसकी विजडम उसकी बातों में, उसके व्यवहार में सबको फील होती है. तो एवरीबडी डजंट जस्ट अप्रिशिएट और अपलॉड, दे ब्लेस हिम. They really create blessings for him because they're so touched by just what he says. Because वो सिर्फ बोलता नहीं है, उसके शब्दों में वो प्योरिटी ऑफ इंटेंट है. तो वो प्योरिटी ऑफ इंटेंट दूसरों से दुआएं लेकर आता है. तो ही इज फॉर्चुनेट लाइक इन, बट दैट फॉर्चून ऑल्सो हैज कम विद पास्ट कर्मस. के पास्ट संस्कार बहुत अच्छे, पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल, और अब तो पूरी दुनिया का ही प्यार मिल रहा है. राइट है ना प्रथमेश? और ब्रांड्स ने भी देखा है, आप तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो ये उम्र में. थिंकरबेल लैब्स के जो आप ब्रांड एम्बेसडर है, वो थोड़ी स्टोरी बोलिए, वो कैसे हुए, और उसके कारण ही आप मोदी जी से भी मिले थे ना? यस, सो थिंकरबेल से पहले एक चीज़ और ऐड मैं करना चाहूँगा. हाँ जी, मुझे एलिम्को के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी लिया गया इस साल. अच्छा. एलिम्को का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू सेक्टर जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनाती है सारे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए. सो कमिंग टू थिंकरबेल लैब्स स्टोरी, एक इंसिडेंट है. मैं एक्चुअली जब मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था ना, सो वो हुआ था सीएमसी वेल्लोर में. एंड उसके बाद मैं वापस आया पुणे, एंड रूबी हॉल में मैंने रेडिएशन लेना शुरू किया ताकि वो ब्रेन ट्यूमर सेल्स जो हैं वो फिर लाइक और रिग्रो होने का उसमें कोई चांस ना हो. एंड उसके बाद मेरी नानी आई हुई थी. सो उन्होंने कहा कि बिना स्कूल के तो ऐसे काम चलेगा नहीं. सो हमने विज़िट किया, वो ब्लाइंड स्कूल था कोरेगांव पार्क का, हमने वो विज़िट किया, और हमें लाइक मैं वहाँ पे मुझे इनरोल कर दिया फिर मेरे पेरेंट्स ने. और उसके बाद मैं 3 मंथ जा ही रहा था, और आप यहाँ पे डेस्टिनी देखिए, मुझे थिंकरबेल लैब्स आई. वहाँ पे थिंकरबेल लैब्स के को फाउंडर आए थे, सैफ भैया. और फिर वो जब एनी के स्मार्ट क्लास इंस्टॉल कर रहे थे, सो मैं बहुत क्यूरियस था, तो मैंने एनी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. और वो जो पूरे की पूरी ट्रेनिंग सेशन थे वो था 5th ऑनवर्ड्स के लिए, और मैं उस वक्त था 3rd स्टैंडर्ड में. बट स्टिल मेरी क्यूरियसिटी देखते हुए उन्होंने लिया मुझे, मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा. और डेस्टिनी यहाँ पे ये कि फिर तुरंत लॉकडाउन हो गया, एंड स्टिल वी वर टच विथ देम. एंड वो हम उनको बताते थे कि पढ़ाई मेरी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ बताते थे. सो इसी बीच फिर शार्क टैंक की अपॉर्चुनिटी आई 2022 में, और आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक. और मोदी जी से जहाँ तक मिलने का सवाल है, वो हमें ऑल ऑफ अ सडन पता चला था. हम बाहर थे एंड वी वर कमिंग बैक टू होम, और हमें फ़ोन आया था जो सीईओ हैं थिंकरबेल के, उनका, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ों के अलावा मोदी जी कल ही आ रहे हैं, तो आज 4 बजे की, लाइक ये बात है शाम के 9 बजे की, और 4 बजे आपको फ्लाइट पकड़ के आनी है. सो ये सारी चीज़ें हुई. सभी चीज़ें काफ़ी इंस्टेंट हुई लाइफ में, लेकिन जो भी हुआ शिव बाबा की कृपा से बहुत अच्छा रहा. तो वो इंटरेक्शन कैसा रहा, क्या बात की वहाँ आपने? सो मैं ऐसे स्टॉल पे बैठा हुआ था, और वो आते हैं और अचानक से एकदम क्या कर रहे हो भाई ऐसे पूछते हैं वो मुझसे. सो उनका पूछने का स्टाइल ही अलग, उनकी वे ऑफ आस्किंग पर्सनालिटी. सो मैंने उनको पूरे डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन किया. पीछे हमने लगा रखा था प्रोजेक्टर पे कि हमारा क्या क्या विजन है 10 years डाउन द लाइन, और हम क्या क्या करना चाहते हैं. तो मोदी जी को हम सब वो समझा रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डिवाइस को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, उनको डिवाइस का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ. तो मोदी जी को काफ़ी अच्छा लगा डिवाइस के बारे में जान के. और डिजिटल इंडिया एक्सपो वीक जो था, डिजिटल इंडिया वीक, उसमें एनी डिवाइस देख के मोदी जी को भी काफ़ी अच्छा लगा. अच्छा, और शार्क टैंक पे भी आप गए थे ना, आप बोल रहे हैं? हाँ, वो वहाँ पे आपने क्या कहा था? सो शार्क टैंक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शार्क टैंक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. हमें फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि
कि एक शो है सोनी टीवी पे आने वाला है। सोनी टीवी सुन के समझ गए थे नेशनल टेलीविज़न है। देन उन्होंने कहा था कि ये करना है, एनी डिवाइस डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो हम समझे कि बेसिकली हमें एनी के बारे में समझाने वहाँ पे जो जजेस होंगे एक तरह से। लेकिन फिर जब हम वहाँ गए, वहाँ की टीम ने, वहाँ के लोगों ने हमें शार्क टैंक के बारे में काफ़ी अच्छा ब्रीफ दे दिया। फिर वहाँ पे अमन गुप्ता सर आए हैं, ये मुझे पता चला। और उसके बाद धीरे-धीरे शार्क टैंक के बारे में सब कुछ समझ आने लगा। फिर धीरे-धीरे जो थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इक्विटी वगैरह, वो सब समझ आने लगी मुझे। शार्क टैंक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे, लेकिन जब पता चला उसके बाद मैं वहाँ गया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ का। बहुत अच्छा रहा था। यू फेल्ट डिफरेंट? आपको अलग लगा फ्रॉम द अदर्स, जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, और ये आपको अलग एक लगता ही है जब डिफरेंस आप था वहाँ पे। वहाँ पे और दूसरे भी जगह जब आप जाते हो? डू यू फील डिफरेंट? एक ही डिफरेंस था वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। शार्क टैंक में सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे, स्टार्टअप वाले, जिन्होंने स्टार्टअप खोला है। मेरे साथ सीईओ लोग थे, वो फाउंडर्स थे, मैं अकेला बच्चा था वहाँ पे। मैं वन एंड ओनली चाइल्ड। सो वहाँ पे मैं वहाँ पे ऐसे पीछे बैठा हुआ था बैक स्टेज पे। वहाँ पे जो उस वक्त के होस्ट थे रणविजय सर, वो आए वहाँ पे देखकर मुझे कि ये बच्चा यहाँ कर क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने उन्हें बताया कि क्या क्या है, कैसे है, मैं ब्रांड एम्बेसडर सब कुछ बताया उन्होंने। तो वो काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने शूट के बाद मुझे बुलाया, 1 घंटे की कॉन्वर्जेशन हुई वहाँ पे, काफ़ी अच्छा रहा। बस यही डिफरेंस था वहाँ पे। Many times, when someone sees something different, we kind of push it aside. We fear sometimes, moving away from, what we are comfortable with, right? Whereas I think differences need to be celebrated, right? Because usme we are able to find and discover so much more meaning, not only in that situation, in yourself, right? Absolutely. How you're able to appreciate. Right. How do we, take that message out, that differences are actually to be celebrated, to learn from, to inspire, so many things that come, but we tend to be very, First and fearful foremost is we never remember that the person is a soul. We're always looking at the body. तो हमारे बहुत सारे differences तो सिर्फ physical level के ऊपर है. Even when we talk of gender discrimination, it's only on a physical body level that we're talking. It's like saying मैंने साड़ी पहनी है, आपने ट्राउजर और शर्ट पहनी है, तो we are differentiating on that. Actually, it's only that much. It is just that much. And that is why spirituality is so important for everybody, क्योंकि वो जीवन के हर पहलू पे आपकी हर चीज़ को बदल देगी. Like he said ना, vision, कि आंखों की विजन या विजन ऑफ लाइफ. तो हिंदी में प्रथमेश 2 वर्ड्स हैं. आंखों की विजन के लिए हम कहेंगे नजर, एंड विजन ऑफ लाइफ के लिए हम कहेंगे नजरिया. हाँ, तो आपको तो आता है, हिंदी वाला वर्ड भी बताना है सबको. तो 2 वर्ड्स कौन से हो गए? नजर और नजरिया. सो नजर इज डिफरेंट, लेकिन हम सिर्फ नजर से देखते हैं कि इन आंखों को क्या दिखाई दे रहा है. सो वी जस्ट लुकिंग एट फिजिकल एंड सेइंग वी आर डिफरेंट. तो चाहे उसको बच्चा बोले हम, या हम कुछ और, तो इट्स फिजिकल. लेकिन नजरिया मीन्स आत्मा, सोल का नजरिया क्या है जीवन के प्रति. If we start looking at that, we have so much to learn from every single soul on this journey. क्योंकि even if you look at 2 children, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों आपके बच्चे हैं, पहले दिन से आपके घर में हैं, आपके इन्फ्लुएंस के अंडर है, सेम स्कूल भी गए होंगे, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों की जो सोल जर्नी है वो डिफरेंट रही है बिल्कुल. सिर्फ अब वो इस समय एक घर में एक पेरेंट के पास है, बट उनकी जो जर्नी है वो दोनों की बहुत डिफरेंट है. सो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट द 2 souls, there is so much to learn from everyone, because no 2 souls can be identical, क्योंकि उनकी जर्नी कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकती है. ट्विंस भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते अपने नजरिए में. नजर से देखने में वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो वील से कोई इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल है. सिर्फ उनका शरीर आइडेंटिकल है, कॉस्ट्यूम आइडेंटिकल है, कहते नहीं, पर सब कुछ उनका सेम है एक ही घर में. पास्ट जर्नी, तो हर एक को ये हमेशा याद रखना पड़ता है, सोल ऑन अ जर्नी. और इस लंबी जर्नी पर हम क्या कुछ सीख के, क्या कुछ फेस करके भी आए हैं. कभी कभी डिफरेंसेस इसलिए भी हो जाते हैं कि somebody nature wise is different from me, but we are not able to understand their nature. जैसे हम ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं. टू अंडरस्टैंड, हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर पता नहीं क्या क्या देख कर आई है,
और वो इस समय हमारे से डिफरेंट है, संस्कारों में डिफरेंट है, नेचर में डिफरेंट है, लेकिन हर आत्मा एक ब्यूटीफुल डिवाइन परफेक्ट सोल है। उनके डिफरेंसेस को समझकर उसके प्रति कंपैशन, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को भी, फिजिकली नहीं चाहिए, फाइनेंशियली नहीं चाहिए, इमोशनली भी नहीं चाहिए। सिंपैथी में तो हम बहुत सुपीरियर हो जाते हैं, हम दूसरे को नीचा फील करते हैं। बट कंपैशन एंड एम्पैथी मीन्स आई अंडरस्टैंड कि आप एंड मैं डिफरेंट हैं। आप नॉट परफेक्ट, लेस परफेक्ट, मोर परफेक्ट, आप और मैं डिफरेंट हैं, क्योंकि आपकी और मेरी दोनों की जर्नीज अलग थी। हम एक दूसरे को समझते हैं और हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हुए हार्मनी में चलते हैं। सो दैट इज वाई कंपैशन एंड एम्पैथी कम नेचुरल ऑन अ सोल कॉन्शियस लेवल। लेकिन बॉडी कॉन्शियस लेवल पर देखें तो फिर जेंडर डिफरेंट है, फिजिकल बॉडी कॉस्ट्यूम डिफरेंट है, फिर रिलीजन डिफरेंट है, मतलब देयर आर डिफरेंसेस एट एवरी लेवल एंड सो इट इज अ गैप। हम कहते हैं हम डिफरेंट हैं, पर जहाँ हमें याद रहेगा कि आत्मा आत्मा हम सब एक, दैट इज व्हेन वी से वसुदेव कुटुंबकम। यू नो एवरीबडी इज सेइंग वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। एक घर में तो अभी हम फैमिली है नहीं, और हम कहते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो कैसे द वर्ल्ड विल बी वन फैमिली? ओनली जब हमें याद रहेगा हर एक आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर ये कुछ नहीं है, ये तो हमारी अब इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद हर एक का डिफरेंट है, लेकिन हर एक सेम एक प्योर डिवाइन पावरफुल आत्मा है। वसुदेव कुटुंबकम बिना सोल कॉन्शियसनेस के पॉसिबल नहीं हो सकता। Taking this journey of the Nazariya of looking at, the unification of everybody Absolutely. versus, just looking at everybody as, in a duality. I think is the core essence of most spiritual teachings. We see at the Brahma Kumari's headquarters or at the center, कितने सब देशों से लोग आते हैं, बट जो वहाँ रहते हैं भाई बहने, हमारी रोज की स्टडी क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, हर एक को आत्मा। तो सोल कॉन्शियसनेस हमारी स्टडी है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है कि फ्रॉम जीरो सोल कॉन्शियसनेस वी वांट टू रीच 100% सोल कॉन्शियसनेस, कि जहाँ कोई भी बायस, कोई भी डिफरेंस हमारे नज़रिए में आना ही नहीं चाहिए। तो बट ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी एट, बट जब लोग वहाँ आते हैं अलग अलग नेशनैलिटीज़ के, अलग अलग रिलीजन्स के, प्रोफेशन, वहाँ अगर बहुत फैमिली फीलिंग उनको लगती है, उनको, क्योंकि कोई उनको उनके रोल, उनके पोजीशन, उसके रिलीजन, उसके नेशनैलिटी के लिए नहीं देख रहा है। कहते ये आत्मा है, परमात्मा के घर आए, जैसे उसने कहा ना शिव बाबा हम परमात्मा को कहते हैं, निराकार परमात्मा। तो ये परमात्मा के बच्चे हैं, इस परिवार का हिस्सा है, हमारे घर आए हैं। सो वो हमारी कॉन्शियसनेस है, बोलने के लिए नहीं है, वो हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस है। तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला आता है उसको भी बहुत फैमिली फीलिंग लगती है, और एक दिन के अंदर उनका रोल, उनके विजिटिंग कार्ड पे क्या क्या लिखा है, दैट इज जस्ट केप्ट असाइड टोटली। और फिर उनको वहाँ कोई अगर पूछ लेना, जी आप क्या करते हैं, तो आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से, छोड़ो ना, अभी क्या फर्क पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, क्या करते हैं वो तो उस दुनिया। सो इट डजंट टेक टाइम फॉर द वाइब्रेशन टू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग। सो मैं आत्मा हूँ शुड बी टॉट टू अस फ्रॉम एट होम एंड फ्रॉम किंडरगार्टन। उससे ईगो भी नहीं बढ़ेगा, उससे यूनिटी आएगी, उससे हर एक को देखने का नजरिया बदलेगा, एंड उससे फैमिली फीलिंग। आज हम कितनी चीजों पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, you know, we are in conflict only because we are different, but soul consciousness just brings everybody together, है ना प्रथमेश? हर एक को यंग चीजों में, यंग लोगों में हाँ, ये लाना लेकर है। आना तो है। कैसे आप यंग लीडर बाकी यंग लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाकी यंग लोगों को क्या बोलना चाहूँगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जैसे दीदी ने कहा कि हम सभी सोल हैं, सोल कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में हम देख रहे हैं काफ़ी लोग इमोशनली वीक हो जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। सो सोल कॉन्शियसनेस हमेशा रखें, ईगो और ये जो दूसरी चीज़ें हैं इन सब से दूर रहें, और हमेशा सोल कॉन्शियसनेस के साथ परमात्मा को ध्यान में रखते हुए हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगर हम, सो वी कैन मेक अप सोसाइटी। ये जो आज के यूथ हैं, ये वी कैन मेक अ सोसाइटी जो सबके लिए परफेक्ट है, एंड वी कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। So, we say think right, सही सोच is very important, Yes. Especially in young people. Yes. तो आपकी सही सोच कब शुरू हुई, और जब भी सिचुएशन आती है, how do you bring that into your life? क्योंकि सिचुएशन कभी
आपकी तरफ जैसी होती है नहीं होती रहती हैं. हाउ डू यू ब्रिंग द राइट थॉट, सही सोच इनटू योर लाइफ एवरी टाइम? सो मैंने हमेशा से पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव रखा है, और जैसा शिवानी दीदी कहती हैं, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन तो बहुत अच्छी बात है, सिचुएशन कोई जो मेरे खिलाफ है, मेरे लिए सही नहीं है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उसके लिए बस यही थॉट मन में होता है कि ये सिचुएशन मेरे कल्याण के लिए आई है, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई रिजल्ट मुझे मिलेगा ही, कभी ना कभी ये सिचुएशन मेरे कल्याण के लिए आई है। बस यही मैं सोचता हूँ, हमेशा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, यही मेरी थिंकिंग रहती है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपको फर्क लगता है उसी समय? यस। और आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका फिर? वो भी बदल जाता है। पर एक बात बताओ, आपको सच्ची सच्ची बताना, कभी भी कुछ भी नहीं बुरा लगा? जब कैसे लगा जब किसी ने कुछ कहा पहले, भले अभी नहीं, पहले कुछ लगा कि मैं डिफरेंट हूँ या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ऐसे कभी लगा कभी पहले? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे। शुरू से नहीं लगा कभी नहीं, एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया, मैं 14 महीने का था तब ये सब हो गया। अब 14 महीने की यादें है ही नहीं मेरे पास। ओके, नहीं, वो वाली नहीं है यादें, वो तो ऑब्वियस है। या। लेकिन बाद में जैसे फ्रेंड्स हैं या कोई और बच्चे हैं या वो कुछ और कर रहे हैं, आपने ऐसे कभी फीलिंग आती? नहीं, उनके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके अलग संस्कार हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं। मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग संस्कार हैं, मैं कुछ और कर सकता हूँ। सो मुझे कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कुछ। But when you see larger children, groups of children, they don't have ये संस्कार. अभी कोई जाके बोलेगा वसुदेव कुटुंबकम in his age, right. वो बोलेंगे ये अलग है. हाँ, ये अलग है. हमको we understand कि you know so ये how do we change that? हम बातें करते रहते हैं कि कि जो एक authenticity होती है. अच्छा, also children want acceptance with other children. काफ़ी टाइम प्रथमेश आपके जैसे गट्स है कि ठीक है बाकी को जो भी कहने दो, बिकॉज आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग. बट मेनी चिल्ड्रन feel, if they feel also like that, they are unable to express themselves and be authentic versions. Spiritual wisdom है ना, इसलिए every child needs it. Every child needs it. और इस समय तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सही पर खड़े होने की शक्ति इस समय बच्चों के लिए, इवन adults I think, why only children, बट बच्चों में भी peer pressure उनसे बहुत कुछ करवा रहा है या वो कर रहे हैं जो उनको पता है कि राइट नहीं है. उनको मालूम है innately, every soul knows what is right, what is not right, and right in the sense जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इमोशनली एंड फिजिकली आई एम हेल्दी. उनको पता है क्या खाना राइट है, क्या पीना राइट है, क्या नहीं राइट है, संग कौन सा राइट है, बातें कौन सी राइट हैं, कर्म, उनको सब पता है. लेकिन बहुत बार राइट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ओनली टू फील इंक्लूडेड बाय द बिगर ग्रुप. कि स्कूल या कॉलेज में सब मुझे इंक्लूसिव, आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई डेफिनेशन ऑफ राइट एंड देन आई एम चेंजिंग माई डेफिनेशन ऑफ राइट. नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो सकता है. इनेटली पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अकेले खड़े होने की ताकत किसी में नहीं है. नहीं है. अकेले कोई भी खड़ा होने में बहुत झिझक रहा है. yes. तो आप कैसे खड़े हो पाए? Where do you get that courage from? So, जैसे अकेले खड़े होने की जहाँ तक बात आती है, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे अपने फ्रेंड्स नहीं है, सो मुझे पीयर प्रेशर या किसी ऐसी चीज़ का डर नहीं है. पहली चीज़ ये हो जाती है, दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस. एंड दूसरी चीज़ ये है मेरे साथ कि मैं जब भी कुछ राइट कर रहा हूँ, अकेले खड़ा हो रहा हूँ कहीं पे, सो इन दी एंड मुझे रिजल्ट तो उस चीज़ का मिल रहा है. सो मुझे ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या जो भी कर रहा हूँ वो सही है. उसके अलावा मुझे ये भी पता है कि उसका रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है उससे दूसरों को शक्ति मिलेगी, ताकि वो भी इस मार्ग पर आ सके और धीरे धीरे सब आ जाएंगे यहाँ पे. कल दीदी यही बता रही थी कि रेड सिग्नल पे सब क्रॉस कर रहे हैं, अगर सीसीटीवी या पुलिस वाला नहीं है, लेकिन एक खड़ा होगा और उसके एक के पीछे एक आ जाएंगे, बिकॉज पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप्स. अकेले सबको लगता है कि अकेले मैं क्या कर लूँगा, लार्ज ग्रुप्स के पार्ट बनना है उन्हें और सब सोशल रहना है. लेकिन जब कोई एक अकेला खड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे सब आ ही जा रहे हैं अंत में, क्योंकि किसी के अंदर वो शुरुआत करने की कैपेबिलिटी नहीं आ पा रही तो है. वही लीडर होता है ना. द लीडर इज द वन हु चेंजेस द पाथ. जो
अलग दिशा दिखा रहे हैं. You're one of those people for this generation. हमने बात की थी ना, Gen Alpha. Yeah. And from India, the largest rising generation in the world is from our country. And you know, the impact that Indians, young Indians are going to make on the world over the next, 25 years as we move to a Viksit Bharat, in this, what we call is the Amrit Kal, is going to be immense. So good values, right Sangat, to be able to build is very important. That's what's very important for him has played a role. The parent has instilled spiritual education. Early. So if it doesn't happen in schools and colleges, it can happen in homes. दोनों में से कोई एक जगह होने की जरूरत है, but दोनों ही, that is the whole thing. Yeah. जब तक हो दोनों में से एक, see schools हमेशा क्या feel करते हैं कि ये रोल पेरेंट का है, which to a think it is right, because इस समय जो education system हमने बनाया है, it is a study only of the outer world subjects. Yeah. तो वो उसी के लिए ग्रूम कर रहे हैं. वो कहते हैं संस्कार देना और ये सारी बातें सिखाना, ये तो घर वाला परिवार का काम है. लेकिन इस समय परिवार बहुत बिजी है सिर्फ अचीवमेंट के अंदर, उन्होंने उसको प्रायोरिटी रखा नहीं है, क्योंकि वो खुद स्टडी खुद भी नहीं कर रहे. जिस घर में पेरेंट खुद स्टडी कर रहा होगा उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पर आएगा ही आएगा. सो ना भी पढ़ाएं बैठकर, खुद स्टडी कर रहे हैं तो वाइब्रेशनली घर में वो एनर्जी फैलती है, एंड फिर पेरेंट तो जो कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली वो बच्चे के साथ शेयर करेगा ही करेगा. तो वो बच्चे का इन्फ्लुएंस धीरे 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 पड़ता ही पड़ता है बच्चे के ऊपर. एंड ये स्टार्ट हो सकता है गर्भ में से, राइट फ्रॉम द वूम, कि जब आत्मा गर्भ में आई है. वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि जो आत्मा गर्भ में आती है वो डेथ देख कर आई है. आई हैव टू सी डेथ समवेयर एंड देन देयर विल बी बर्थ समवेयर एल्स. तो डेथ देख कर आना मतलब परिवार खोना, अपना सब कुछ खोना. दर्द में आती है आत्मा गर्भ के अंदर, और जिस परिवार को छोड़कर आती है वो भी बहुत पेन में है. सो लॉट ऑफ पेन वाइब्रेशंस गोइंग. तो पहले, आज से 30-40 साल पहले, वो गर्भ का समय बहुत डिवाइन बनाया जाता था कि वो 9 महीने में क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या बात करनी है, घर का माहौल, सबको कहा जाता था इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, ये खुश रहेगी बच्चा ठीक रहेगा, खुश रखो. नॉट जस्ट हेल्दी रखो, खुश रखो वॉज द अंडरलाइन वर्ड. बिकॉज उनको पता था कि सिर्फ गर्भ में शरीर नहीं डेवलप हो रहा है, संस्कार डल रहे हैं. तो उस समय स्पिरिचुअल इनपुट, मेडिटेशन, योगा, स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीज़ें उस 9 महीने में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंडेटरी होती थी. वो संस्कार बच्चे में आते थे. जब से हम टेक्नोलॉजी के इस 20-30 ईयर्स के अंदर आए हैं, जिसमें हर एक्सपेक्टिंग कपल के पास हाथ में फ़ोन है, ऑनलाइन है, एक्सपोजर टू कंटेंट है, तो वो स्पिरिचुअल इनपुट डाल रहे हैं कि नहीं वो तो पता नहीं, वो उनकी चॉइस है, लेकिन वो बहुत सारा दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं, विच इज़ एन इमोशनली डिप्लीटिंग कंटेंट, जो बड़ों को भी इमोशनली डिप्लीट कर रहा है. वो उस समय जा रहा है जब वो सोल गर्भ में है. तो वो गर्भ संस्कार पे पहले काम करना है कि उस समय टू टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स व्हाइल द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप. इसीलिए जिस भी घर में स्पिरिचुअलिटी एक जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम आ जाती है, आपको बच्चे पर ऐसे इम्पोज नहीं करनी पड़ती है. जस्ट लेट इट बी देयर, द वाइब्रेशन, द फ्रेग्रेंस, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम सुबह उठकर पहले क्या करते हैं, हम रात को सोने से पहले. इट्स लाइक अ रिचुअल ऑफ द हाउस. और वो अगर तब से होता है ना, तो फिर बच्चों के अंदर वो संस्कार आना बहुत नेचुरल होता है. प्रथमेश, आपके लिए बचपन से हुआ ये? मम्मी बचपन से सुना रही थी ना सब कहानियाँ? यस, मम्मा जैसे मुझे ये सब हुआ था, मम्मा ने मुझे समझा दिया था कि ये चीज़ें हैं, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी में मुझे डाला था कि आई कैन विथस्टैंड एवरीथिंग. एंड जब भी मैं उनके पास सो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो चीज़ें सुनाती रहती थी, मंत्र सुनाती रहती थी, मैं सुनता रहता था, उसी से सीखता रहता था सब कुछ. तो ये जो अभी जो जेन बीटा जो जनरेशन है, जो आज 2025 में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आई थिंक दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर द फैमिली. बिकॉज जो व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट. हमारी भी जनरेशन में अगर आप देखें, मेनी पीपल से हाँ स्पिरिचुअलिटी, towards the end of our life we will spend in that. But if we are not building that, अच्छा बचपन में छूट गया, समझो आप यंग यूथ कोई भी एज में स्टार्ट कर लो, थोड़े जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट दूसरों पे आएगा एज अ सोसाइटी, बिकॉज वी आर सो सोशल
जैसे वो बोल रहे थे ना कि संगत इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? यू नो, ही वाज in a sangat of his family and parents, so you stayed untouched. But we cannot build a generation like that, right? But bakiyon ko, it's so important, therefore, to build some understanding of spirituality, or at least the identification of what we truly are, you know, so that we can become the best versions of ourselves and the next generation. हर घर में थोड़ी देर, आज अगर हम प्रथमेश से इतना सीख लें सिर्फ, और उसकी फैमिली ने जिस तरह से किया कि हर घर में थोड़ी देर इस पर बात की जाए, ये बच्चे को सिखाया जाए। अब हर पेरेंट्स सोचेगा नहीं हमारे बच्चे को जरूरत नहीं, वो तो ठीक है ना, इसको इसकी मम्मी ने स्पेशल किया, क्योंकि उनको चैलेंज जल्दी आया। We don't have to wait for a challenge. Exactly. बट इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रथमेश के पास सिर्फ छोटा सा एक फिजिकल चैलेंज आया है, एंड दैट इज एक्चुअली अ फिजिकल चैलेंज इज इजियर टू हैंडल। इस समय बहुत सारे बच्चों के पास इमोशनल चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इस समय बच्चों के पास एंजाइटी, पैनिक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, ट्रबल्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर प्रेशर। आजकल तो एक नया चीज़ है जेंडर आइडेंटिटी, मतलब इट्स अ बिग थिंग दैट इज हैपनिंग। तो उनको ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, ये बचपन से सिखाया जाना चाहिए। फिर ये जेंडर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में कोई नहीं जाएगा कभी भी, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड हु दे आर। सो नोइंग माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल इज सो इम्पोर्टेंट। And even others will understand, you know, everyone, right? The choices people make, both from a body and mind. I think बहुत बार हम, what you're saying, we talk of body, but we forget the mind is so critical. तो आप जो कह रही हैं कि even more than a tumor at that age that has taken away his eyesight, is the mental state of people today. Absolutely. So he is only facing a little physical challenge, but his mental strength is so high कि वो physical challenge उसको disturb ही नहीं करने वाला है। लेकिन जब mind में disturbance है, उसको आप किस चीज़ से ठीक करोगे? बॉडी के चैलेंज को आप माइंड की पावर से यूज करके ठीक कर सकते हो, लेकिन माइंड की पावर में अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, आप उसको किससे ठीक करेंगे? बॉडी की पावर से तो नहीं ठीक कर सकते। सो स्ट्रेंथनिंग द माइंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर वो आपकी लाइफ के किसी भी चैलेंज में आपके पास वो पावर है जिससे आप वो चैलेंज स्ट्रेंथन करने के लिए टुडे वी आर, द वर्ल्ड इज सीकिंग what is there, which is already in us. Is already I there think in bringing us. that out is so important. And you know, you were describing me, Prathamesh, आपका जो physical challenge था, you know, what you were saying, your olfactory. Explain to me, what is the physical challenge with your vision, and how will it get corrected in the next few years? So what happened is, you know, the brain tumor I was telling about, it affected my nerves. It affected the optic chiasma, where the eyesight, like the nerves of the eyes join. So my eyesight is completely fine. Like मुझे इंस्टा पे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि प्रथमेश मैं आपको आपकी आइज डोनेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा भाई नर्व्स का इशू है, आंखें तो मैं इतना फाइन है कि मैं किसी को डोनेट कर सकता हूँ, इतनी फाइन है। बट द प्रॉब्लम इज विद द नर्व्स। सो अब यही एक चीज़ है कि एक्सेप्ट इट एंड प्रोसीड, एंड इसमें कोई मेंटल असर नहीं पड़ने देना है। बाकी जो है लाइक अभी मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाता है, पर अभी तो ये नर्व्स का इशू है। नर्व्स के इशू में अभी तक तो मेडिकल साइंस ऐसा कुछ कर नहीं पाया है। एंड यू नो, आप इससे पहले जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, उस पर मैं एक चीज़ बोलूँगा। एक्चुअली यू नो, स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे लगता है, जैसे मैं तो आधे घंटे की पूजा करता हूँ, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में मैं आपको बताता हूँ, परमात्मा का सिंबल जलता रहता है, उसके अलावा हम उठते हैं, ठीक है, सो सब नहा धोवा लेते हैं, और मम्मा खाना बनाने से पहले ना, इससे पहले गैस ऑन हो, हमारे यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, वो ऑन हो जाता है, और उसमें गाने बजा देते हैं, स्तोत्र वगैरह बजा देते हैं हम लोग। सो जो भी उठता है वो स्तोत्र उसके कान में चलते रहते हैं, वो बस कुछ भी काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में मंत्र वगैरह बज रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी ही चलती रहती है, हमारा पूरा दिन ऐसे ही भरा रहता है पूरा। That gives you the power. Yeah, to deal with. So this is not a minor physical challenge. I wanted to bring that point out. And he can have this smiling face, so why not? हमेशा खुश रहते हैं ना? Yes. हमेशा खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। ओहो, सीख लिया, हो गया पक्का। वेरी नाइस, बढ़िया। तो हम एक ये नए सेक्शन में मूव करते हैं, जो है माइंडफुल मिनट। प्रथमेश, ओके, आपने रैपिड फायर वगैरह देखे हैं ना टीवी शोज पे, पर आपको इधर
ध्यान से साइलेंट होके ये करना है. There's no rapid नहीं करते हम, rapid बहुत नहीं प्यार करना से है. करते हैं It's आराम not. से. This is the answer. It's not like that. This is not like that. It's Yeah. a mindful Mindful minute. minute. So सोच के आप ये जवाब दीजिए. Yes. You know what is the motto of your life? Motto is to be always positive and always be happy. मैंने इस पे एक 4 लाइनें भी लिखी थी कि मैंने चुनौती से बढ़कर अवसर को चुना, कमियों से बढ़कर हौसले को चुना. मैं वो हूँ जिसने अपने जीवन में हर पल हंसकर जीने को चुना. अरे वाह. So being happy, being positive, being spiritual is the motive. Wonderful. It's all that children need to. If every child says this. If everyone says this, if everyone So I says think this. today's podcast is actually, you know, a message from the innocence of a younger person to a generation that is just so confused about what truly is life and how is it to be lived. You know? एंड ऑल्सो स्पेशली जो जीवन की छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर परेशान होते रहते हैं. Correct. एक छोटी चीज को, एक बार एक प्रोग्राम में एक परिवार बच्चों के साथ आया था. फिर कुछ लोगों को जिनकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बाद में रुक कर मिलते हैं कुछ लोग. तो वो लाइन में बहुत देर, मतलब कुछ ज्यादा लोग थे उस दिन. फिर जब वो आए, मैं कहा बताइए, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को चश्मा लग गया. ऐसे नहीं, वो तो ठीक है, प्रॉब्लम कौन सी है? कहते मेरे लिए यही प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी को चश्मा कैसे लग गया. सो यू नो वी कैन मेक सच small things, insignificant things also something to trouble the mind. आपको इंसिडेंट बता रहे थे ना कि जैसे पहले के वक्त में बुखार वगैरह होता था तो नॉर्मल रहते थे. अब वो हॉस्पिटल में लेडी आई थी, मेरे बच्चे को बुखार हो गया, पहले मेरे बच्चे को देखो. शी क्रिएटेड अ टर्बुलेंस. वो बता रहे थे कल. हाँ सच्ची में, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों में. मेरे बच्चे को बुखार हो गया, पहले मेरे बच्चे को देखो. ऐसे हो गया. ऐसे हो गया ना, तो वो बच्चे को तो एनर्जी मिल जाएगी ना, डर वाली, फियर वाली. सबको सब अपने बच्चों को आगे टर्बुलेंट एनर्जी. पर अगर सब एक दुनिया एक सब. See his clarity of thinking. Yesterday we did a session there where he was there. He remembers every word of it. He just is like a blotting paper. Uski absorption is very high. If you see. But not everyone remembers like but this. But of course I understand. This is another reason also I feel, क्योंकि ये बाकी बहुत सारी दुनिया की चीजों से बचा हुआ है. You know? आप बहुत सारा क्लटर, आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा इतनी प्योर है, डिवाइन है. हम इतना दुनिया का क्लटर इतना भर देते हैं उस पर कि वो हमारी मेमोरी, हमारी अब्जॉर्प्शन पावर, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता, हर चीज़ अफेक्ट हो जाती है. वर्जन ऑफ योरसेल्फ. या बिकॉज़ हम कितना हम सोसाइटी में बोलते हैं अरे इसको ये भी सीखना चाहिए. और आज तो विद इंटरनेट एंड नाउ विद एआई वी कैन, देयर इज सो मच टू यू नो इंटीग्रेट इनटू योर लाइफ, बट इट टेक्स अवे फ्रॉम द कोर. You know, that core that enables you to become the best version and not part of a herd, जैसे आप correct बोल रहे थे. So tell us one other story, Prathamesh, which makes you laugh, which you remember from your many experiences that we've talked about. Which makes me laugh. मतलब जीवन में कोई ऐसी बात हुई हो, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ ऐसे. आपको, आपके पिताजी को, मम्मी को कुछ ऐसे? नहीं, यूजुअली कोई भी हमें कुछ कहता है तो हम इग्नोर करते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसे शिवानी दीदी भी कहती है अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है कि मेरे इमोशंस, मेरे मूड स्विंग्स मैं किसी और के हिसाब से चलूँगा, ऐसा नहीं. एक बार क्या हुआ था, हम किसी जगह घूमने गए थे एंड मेरे पापा पार्क करने गए गाड़ी, तो मुझे उतारा. फिर यहाँ पे जो टिकट वहाँ पे निकाल रहा था ना, उनको मामा ने कहा कि मैं इसको उतरने में मदद कर दीजिए. तो मैंने उतरा तो वो ऐसा पूछा कि क्या सो रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता है. मैं स्माइल करते हुए अपनी मम्मा के साथ आगे बढ़ जाता हूँ और पापा वहाँ देख रहे हैं क्या कि वो भाई टिकट निकालना भूल ही गया, बस वो 2 मिनट मुझे ही देखे जा रहा है. The power of the smile and the walk. The power of the vibration. Of the vibration. है ना, आपकी वाइब्रेशन ने असर कर दिया. अगर मैं बस कह देता कि मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं वही रुका रहता है, ऐसा कुछ, तो शायद वो सिंपैथी देते. लेकिन मैंने जब मेरे चेहरे पे जब मैं इस अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, सो वो वाइब्रेशन सामने वाले को भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं. Absolutely. अच्छा, one invention you wish existed for the visually impaired, for someone who is blind. One invention. One invention that existed.
should can come? या What do you बननी think? चाहिए कोई ऐसी बननी चाहिए, चीज with जो your लाइफ को experience. इजी कर देगी, कंफर्टेबल करेगी? लाइफ, मुझे तो लगता है आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं, एआई हो गया, सब हो गया, लाइफ और कंफर्टेबल नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि इन्वेंशंस तो ऐसे होने चाहिए जो आपको स्पिरिचुअली और आगे बढ़ाएं। इन्वेंशंस ऐसे होने चाहिए जो आपको मतलब इन्वेंशंस ऐसे होने चाहिए ना जो आपको स्पिरिचुअल, जैसे ऐप हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो आपको मेडिटेशन में मदद करे, जो आपको स्पिरिचुअली आप खुद को इन्हांस करने में मदद करे। इस टाइप के इन्वेंशंस होने बहुत ही चाहिए। अलग आंसर है आपका when you say visually impaired, because we all connect Visually so much to impaired the physical aspect. मुझे तो लगता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए इन्वेंशंस आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो मैं ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो नहीं, बट आपने सही कहा कि माइंड अगर आपने उसको कंट्रोल कर दिया तो फिजिकल की हम हमेशा फिजिकल की ही सोचते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इन्वेंशंस वे। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ऐसे होने चाहिए हाँ। जो मतलब इट शुड बी लाइक अ कंपेनियन। जब भी वो कुछ ऐसा सोचने लगे कि उनको क्यों है, तो वो माइंड डाइवर्ट करने में मदद करे। ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके डिफरेंस को आपको सेलिब्रेट करने में मदद करे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। वेरी गुड, वेरी गुड। वन थिंग दैट ऑलवेज मेक्स यू स्माइल, नेवर फेल्स। नेवर फेल्स। जब भी कुछ होता है मेरे साथ, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मम्मा को कहता हूँ मम्मा स्कूटी उठाइए, चलिए जगदम्बा भवन, और वहाँ पे जो शिव बाबा का रूम है ना जहाँ पे मेडिटेशन होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस 2 मिनट वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। इट ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। बस इतना ही करता हूँ मैं। This is again very important. What we keep telling everyone: bring your children to a meditation center. तो सेंटर मेडिटेशन है तो वाइब्रेशन अलग है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना, उस सेंटर के अंदर भी एक मेडिटेशन रूम होता है, अ सेपरेट रूम, जहाँ कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ मेडिटेशन उसी रूम पर होता है। तो जो भी उस रूम में जाएगा उसको अपने अंदर एक वाइब्रेशनल शिफ्ट फील होगा ही। इट्स लाइक दूसरों ने मेडिटेशन किया और वो पावर क्रिएट हुई, और वो पावर आपको वो पावर दे रही है। सो लाइक ही शेयर, जब भी कुछ थोड़ा सा भी माइंड थोड़ा भी तो फटाफट एक हाई एनर्जी स्पेस में चले जाओ और अपनी एनर्जी को फटाफट बढ़ा लो, राइट? मेरा ये जगदम्बा भवन बहुत नियर बाय है, ऊपर से इतना बड़ा सेंटर है। मैं मम्मा को कुछ नहीं कहता कि मम्मा स्कूटी उठाते हैं वहीं चलते हैं। मम्मा को भी कुछ होता है, मम्मा कहते हैं प्रथम जगदम्बा भवन चले क्या आज? मैंने कहा मम्मा नेकी और पूछ पूछ अभी चलो। नेकी और पूछ पूछ। थोड़ी देर शीतल, लाइक यहाँ वहाँ पे जितनी भी दीदी हैं, शीतल दीदी, जितने भी भाई जी लोग हैं, थोड़ा देर मेडिटेशन रूम में बैठ जाओ, आधा 1 घंटा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा बातचीत कर लो। बस व्हेन यू गेट बैक आपको लगता है अभी अभी क्या हुआ था, जो भी हुआ था अब रहने दो, लेट इट बी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। Correct. You come to the present, you are in the now, and you look to the future. Yes. Last question. How do your family describe you? लाइक जैसे फैमिली से मैंने अभी अपना डिस्क्रिप्शन लिया नहीं, वो कभी मुझे इसके लिए मैंने ये सवाल डाला है कि आप अगर सोचो, मुझे स्पिरिचुअली डिस्क्राइब करते होंगे या जो भी है, मैंने कभी इस बारे में पूछा नहीं, सोचा नहीं। मतलब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप कैसा बच्चा हो? ऐसे वो मुझे एक आज्ञाकारी बेटे के तौर पे लेते हैं, अच्छे बच्चे के तौर पे लेते हैं, वो यही सोचते हैं वो मेरे बारे में। बाकी मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मुझे लगता है शिवानी दीदी जो मुझे डिस्क्राइब करेंगे शायद मैं वैसे ही वो उसमें वो लास्ट क्वेश्चन तो वही होगा कि वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। पर आपने सही कहा कि आज्ञाकारी बच्चा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो आज्ञाकारी नहीं बनना चाहता है, पर वो मस्ती में नहीं होता है। सो नहीं होता है। तो हर पेरेंट चाहता है कि वो अपना बच्चा आज्ञाकारी बच्चा हो, और दैट, बट in that process you have to discover the true essence of life. And we'll end this podcast with Shivani didi saying, how will you describe Prathamesh? So one thing I'll tell you, आज्ञाकारी बेटा इसीलिए कहा मैंने क्योंकि हमारा दिन जैसे स्पिरिचुअलिटी से भरा रहता है, तो मैंने पेरेंट्स का सम्मान करना सीखा है। और जैसे जब भी कुछ होता है तो मम्मा का सर वगैरह सेवा करता हूँ, मम्मा की पैर वगैरह दबा देता हूँ, ऐसी काफ़ी चीज़ें करता हूँ मैं, योगा वगैरह भी काफ़ी चीज़ें होती हैं मेरी, तो इसीलिए दे डिस्क्राइब मी एज आज्ञाकारी बेटा। Yeah. How will you describe him? Prathamesh is a divine angel, है ना? Divine है, pure intent, like बिल्कुल साफ, मन चित बिल्कुल साफ, purity और intent, और परमात्मा का फरिश्ता इस दुनिया के लिए, है ना? फरिश्ता आप दुनिया के लिए, एंजल नहीं है।
आपकी सिर्फ वाइब्रेशन से कितनों को शक्ति मिल जाएगी। Yes. बाकी फिर शब्द, फिर कर्म, वो तो है ही, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ही रेडिएट करती है सृष्टि पर, तो कितनी प्योरिटी एंड पावर सृष्टि पर फैल रही है। एक्चुअली आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, वाइब्रेशंस की जहाँ बात आई, अब ब्रह्म कुमारी से मैं इतना जुड़ गया हूँ। कल मैं मुंबई गया था, ठीक है, रिटर्न आ रहा था वहाँ से, सो यू नो गाड़ी में सीएनजी लीक करना शुरू कर जाता है। एंड व्हाट हैपेंड इज, फिर हमने सोचा कि अब करें तो करें क्या, तो हम गाड़ी से उतरते हैं, फिर वो लोग सीएनजी का टैंक बंद करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग पेट्रोल से चलना शुरू करते हैं। सो मैं बैठे बैठे वही वाइब्रेशंस दे रहा हूँ कि ये गाड़ी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, अंकल भी एकदम ठीक है, सब ठीक है, हम लोग सेफली घर पहुँच जाएंगे, अंकल सेफली घर पहुँच जाएंगे, सब ठीक रहेगा। सो वाइब्रेशंस का ही असर पड़ता है, वाइब्रेशंस हमेशा देते हैं। नहीं, you have learnt it all and now you're sharing that learning with everybody. आपके नेशनल अवार्ड्स ये वो से बेहतर जो शिवानी दीदी ने आपको जो टाइटल दिया है डिवाइन एंजल, आई थिंक यू नाउ हैव अ लाइफ अहेड टू कंटिन्यू टू स्प्रेड more joy into the lives of many others, like you have done so far. Your journey has just another begun. beautiful thing about him, which I just thought like, इतना उसको appreciation मिल रहा है दुनिया से, इतना young age में ना मिला, इतना कुछ मिल रहा है, बट उसने भी उसके अहंकार को बढ़ाया नहीं है, है ना। ईगो का वो अभी तक टच कुछ भी नहीं है। प्रथमेश, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सफलता तो बहुत मिलेगी, लेकिन अहंकार नहीं लाना, ईगो प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे आप आएंगे, बहुत लोग आपकी वाहवाह करेंगे, बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन हमेशा क्या रहना है, निमित्त। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। परमात्मा से जुड़े रहना है, अहंकार नहीं लाने, ईगो नहीं लाने, वरना फिर जो भी जिसके अंदर घमंड आ जाता है वो कहीं ना कहीं बिखर ही जाता है। फिर तो वाइब्रेशन ही बिगड़ जाएगी ना। अगर घमंड आ गया तो वाइब्रेशन की डिविनिटी खत्म हो जाएगी। तो निमित्त, हाँ, परमात्मा 3 वर्ड सिखाते हैं, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। निमित्त इंस्ट्रूमेंट, निर्माण हम्बल, एंड देन वर्ड्स में प्योरिटी, निर्मल वाणी। तो फरिश्ता वो होता है, इसलिए आप फरिश्ता हैं और हमेशा फरिश्ता रहेंगे। What a wonderful conversation. You know, I think the beauty of being different is a strength, you know, that we have understood today, an inspiration, you know, someone who can really, I think I've thoroughly enjoyed this conversation myself, and I'm sure everyone who is hearing and listening in would really appreciate and have a lesson, actually many lessons to learn from this one young, lovely prodigy, 13-year-old, that as a country we should be so proud of as we move forward. Thank you. Thank you, sir. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.